जगह नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। पूरा सिस्टम कर देना। कल कंसंट्रेशन और यूरिन मैंने स्टार्ट किया था और मेरे ख्याल से काउंटर करंट मल्टीप्लायर हो गया ना। Yes, sir. Counter current exchanger से start करना है. हाँ, so after counter current multiplier, now we start counter current exchanger. काउंटर करंट एक्सचेंजर में आएगा वासा रेक्टम, VASA वासा रेक्टम. Counter current exchanger is due to vasa rectum. Counter current exchanger is due to vasa rectum. It is responsible for the maintenance of the hyperosmolarity of the medullary interstitial fluid
Vasa recta is highly permeable to water and sodium ion. Vasa recta is highly permeable to water and sodium ion when blood enters in the vasa recta. When blood enters in the vasa recta, it is isotonic to plasma. It is isotonic to plasma. When this capillary descends downward, descend downward into the deeper part of the medulla, water diffuses out passively from the blood. Water diffuses out passively from the blood. Sodium and urea passively diffuse into blood. Sodium and urea passively diffuse into blood. वासा रेक्टा की शेप कैसी होती है? यू शेपेड स्ट्रक्चर होता है। अगर यू शेपेड स्ट्रक्चर नहीं हो तो यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं होगा। So if the vasa recta would be a strict tube without hairpin arrangement, विदाउट हेयर पिन, जैसे लड़कियां सर में एक पिन्नी लगाती हैं, उसको क्या कहते हैं? हेयर पिन। हाँ, विदाउट हेयर पिन अरेंजमेंट, in this case the blood would remove all the sodium ion from the medullary interstitium. In this case, the blood will remove all the sodium ion from the medullary interstitium, and so the hyperosmolarity will be reduced. But this does not happen since the vasa recta has a hairpin-like structure. Since the vasa recta has a hairpin-like arrangement.
When the blood passes through the ascending limb, when the blood passes through the ascending limb, when the blood passes through the ascending limb of the vasa recta, sodium and urea diffuses out sodium and urea diffuses out of blood and enters in the medullary interstitium and remove the water from it So hyperosmolarity of the medullary interstitium. So the hyperosmolarity of the medullary interstitium is maintained. Sodium and urea are exchanged for water. Sodium and urea are exchanged for water between the ascending and descending limb of vasa recta. This system is called counter current exchanger. Let's all listen. Sodium and urea are exchanged for water between the ascending and descending limb of the vasa recta, and this system is called counter current exchanger. अब इसके बाद काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर के बाद नेक्स्ट चीज आती है यूरिन जो प्रोड्यूस होता है, एक्सक्रीट होता है, इसका पीएच कैसा होता है? एसिडिक, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन एसिडिफाई कैसे हो जाता है, यूरिन किस तरीके से एसिडिक हो जाता है. So next is acidification of urine. Acidification of urine. Normally urine is acidic in nature. With a pH of 6. Urine becomes acidic. Because of
urine becomes acidic because of tubular secretion of one is hydrogen ions. Hydrogen ions are secreted. In exchange of sodium ion. Hydrogen ions are secreted in exchange of sodium ions in the PCT and TCT. Second is and by the formation of ammonia. And by the formation of ammonia. अब एक आपको चार्ट बनाना है, इसे ऊपर लिख लीजिए सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द पीसीटी। पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें हाइड्रोजन आयन का सेक्रेशन किस तरीके से होता है? 3 वर्टिकल कॉलम बनाओ। मेक 3 वर्टिकल कॉलम। Make 3 vertical column. In the first column, write down extracellular fluid. In the first column, write down extracellular fluid. In the second column, write down tubular cells. And in the third column, write down lumen of the tubule. मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देख के आप इसको अगर दिखाई दे रहा हो तो बताओ। दिखाई दे दिया बेटा? नहीं, आपको क्लियर नहीं है ये वाला? दिखाई दे रहा है कि नहीं? नो सर, क्लियर नहीं हो रही है सर क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं है सर। हाँ, मेरे को भी लग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात। सर इसको सेंड कर देना, बाकी और लिखा दीजिए। रुको, मैं अभी ही सेंड कर देता हूँ, तभी तो समझ में आ रहा है।
पहुंचा? हेलो, यस सर, पहुंच गया। पहुंच गया? यस सर। हाँ, अब देखो इसमें तीन एक चार्ट बना हुआ है, उसमें 3 वर्टिकल कॉलम है। पहले में लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सबसे बाद में पहुंचा होगा, पहले उसको देखो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेकंड में लिखा है ट्यूबुलर सेल्स, और थर्ड में लिखा है ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल। नीचे इसके लिखा होगा सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन पीसीटी। दिखाई दिया? बोलो। सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन, दिखाई दे दिया? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रही है। अब आप ऐसा करो, कृपा करके जो मैंने भेजा है आपको, है ना, इसको सबसे पहले आप अपने कॉपी पे बना लें इस चार्ट को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार लिख लोगे, समझाना बड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो समझाने में आपको समझने में परेशानी आएगी। तीन वर्टिकल कॉलम बनाइए। पहले में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरे में ट्यूबुलर सेल्स, और थर्ड में क्या, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। अब ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में देखिए, मैं आप शुरू करो, सबसे ऊपर आपने लिखा होगा, देखा होगा, इसमें लिखा NaHCO3 लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में, यानी सबसे थर्ड कॉलम में NaHCO3 का ब्रेक डाउन हो गया। किसमें ब्रेक डाउन हुआ? सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। इसमें ब्रेक डाउन हुआ सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। अब ये सोडियम आयन किस में आ गया? ट्यूबुलर सेल में, और ट्यूबुलर सेल से सोडियम आयन किस में आ गया? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ गया। पहले तो इतना समझ लो, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में NaHCO3 लिखी है, और इसको ब्रेक डाउन करते हो किसमें? सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। अब सोडियम आयन किस में आ जाएगा? ट्यूबुलर सेल में, एरो बना के ट्यूबुलर सेल में भेज दो, और ट्यूबुलर सेल से ये सोडियम आयन एरो बनाओ, किसमें भेजोगे इसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो सोडियम आयन ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल से किस में पहुंच गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट का डिसोसिएशन हुआ, तो सोडियम आयन तो चला गया, बचा क्या? बाइकार्बोनेट आयन। बचा क्या? बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपने ट्यूबुलर सेल के अंदर भेज दिया। ये कहाँ भेज दिया आपने? ट्यूबुलर सेल के अंदर भेज दिया। जब एक पॉजिटिव चार्ज अंदर गया, तो उसके बदले में चार्ज बराबर रखना ना, एक पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर आएगा। तो ट्यूबुलर सेल से एक हाइड्रोजन आयन किसमें आ गया? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। तो एक एरो बनाओ, तो बना हुआ उसमें ट्यूबुलर सेल से इसमें ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में, और वहां लिखो हाइड्रोजन आयन। इतना समझ में आया? हेलो, यस सर, आ रहा है। यस सर। हाँ जी सर। हाँ, गुड। तो हाइड्रोजन आयन देखो पहुंच गया ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। अब ये हाइड्रोजन आयन ने किससे रिएक्शन किया? HCO3, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन। तो हाइड्रोजन आयन H प्लस HCO3, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? H2CO3। इसका क्या नाम है? कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड का ब्रेक डाउन कर दें, ये सब ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में हो रहा है। कार्बोनिक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ, इसमें ब्रेक डाउन होगा H2CO3 का। H2CO3 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये किससे बना? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। किससे बना? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। अब क्या होगा? दोनों
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ये किस में चली गई? ट्यूबुलर सेल में। यहां तक क्लियर हो गया? तो नीचे ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में एरो बना, कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गई? ट्यूबुलर सेल में आ गई। यहां तक समझ में आ गया? किसी के समझ में यहाँ तक, किसी की समझ, जिसकी समझ में यहाँ तक ना आया हो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, बिना संकोच के पूछो, विदाउट एनी हेजिटेशन। बोलो, कोई ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो? थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। सर बता दीजिए सर एक बार फिर से। कौन, नावेद बोल रहे हो? यस सर, सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो सुनो, 3 कॉलम बनाया आपने वर्टिकल। पहले में क्या लिखा? एक्स्ट्रा सेल फ्लूइड। सेकंड कॉलम में आपने क्या लिखा? ट्यूबुलर सेल लिखा। और थर्ड कॉलम में आपने क्या लिखा? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। ल्यूमन किसे कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो खाली स्पेस है ना, जिसमें फिल्ट्रेट आया, ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, प्लाज्मा फिल्टर होके आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। तो ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में आपने लिखा क्या? फिल्ट्रेटर में क्या चीज आ गई? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3 आपने देखो लिख रखा है। अब वहां पर क्या होगा? NaCO3 का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया। किसमें हुआ? सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट। यहां तक क्लियर? यस सर। एनी डाउट? यहां तक नावे समझ में आया? यस सर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ, ये किसमें हुआ? सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। हाँ, सोडियम आयन अब किसमें आ जाएगा? ट्यूबुलर सेल के अंदर आ जाएगा। एक एरो बनाओ ट्यूबुलर सेल की तरफ और सोडियम आयन लिख दो ट्यूबुलर सेल में। अब ट्यूबुलर सेल से सोडियम आयन ये किस में आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक एरो बना दीजिए, कहाँ इसको भेज देंगे आप? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन को ट्रांसफर कर दें। तो सोडियम आयन कंप्लीट हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया सोडियम आयन का। सोडियम आयन क्लियर हो गया है ना? बचा अब सोडियम बाइकार्बोनेट का जब ब्रेक डाउन हुआ तो सोडियम आयन तो चला गया, कहाँ पहुंच चला गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब बचा क्या? बाइकार्बोनेट आयन बचा है ना, बाइकार्बोनेट आयन बचा। अब बाइकार्बोनेट के साथ में किसी का जुड़ना भी जरूरी है। अब सोडियम आयन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये सोडियम आयन ट्यूबुलर सेल के अंदर चला गया। तो जब ट्यूबुलर सेल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज वो किस में आ जाएगा? आना चाहिए ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। तो कौन सा आयन आ जाएगा? ट्यूबुलर सेल से ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में आ गया हाइड्रोजन आयन आ गया। कौन सा आयन आ गया? हाइड्रोजन आयन आ गया। अब इस हाइड्रोजन आयन ने क्या किया? अब ये हाइड्रोजन आयन कैसे बना तो आगे उससे पहुंचते हैं। अभी बस इतना समझ लो, ट्यूबुलर सेल से हाइड्रोजन आयन आ गया, किसके बदले में आया? सोडियम आयन के बदले में आया। तो हाइड्रोजन आयन H प्लस HCO3 ये दोनों ने मिलके फिर बना लिए, क्या बनाया? H2CO3। H2CO3 बन गया, यानी कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ, इसका डिसोसिएशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ वहीं पर ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल के अंदर। इसमें CO2 प्लस H2O, इसमें हुआ डिसोसिएशन CO2 प्लस H2O। अब बोलो इतना समझ आ गया? आगे बढ़ो। यस सर। अब कार्बन डाइऑक्साइड ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल से किस में आ गया? ट्यूबुलर सेल के अंदर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। और ट्यूबुलर सेल के अंदर ऑलरेडी वाटर तो प्रेजेंट है इस सेल के अंदर। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्यूबुलर सेल के अंदर वाटर से रिएक्शन किया। कैसे किया? CO2 प्लस H2O। वहां पर एक एंजाइम ट्यूबुलर सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें लिखा हुआ है CA। CA का फुल फॉर्म क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम।
हाँ, तो CO2 plus H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या बन गया? फिर H2CO3 बन गया। फिर क्या बन गया? H2CO3 बन गया। क्या बना है? कार्बोनिक एसिड बन गया। अब इस कार्बोनिक एसिड का फिर ब्रेकडाउन होता है, किसमें हुआ? ACO3 प्लस हाइड्रोजन आयन। देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, एक हाइड्रोजन आयन ट्यूबलेट सेल से किसमें आ गया था? ल्यूमन ऑफ द ट्यूबलेट में आया था ना। तो वो हाइड्रोजन आयन किससे बना? इस कार्बोनिक एसिड से बना। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो यस सर। आप मैं आ गया, जिसके नहीं आया हूं वो पूछो। और किसी की समझ में यहां तक ना आया हो? दीक्षा कटियार, समझ में आया? Yes, sir. आ गया है। रंजीत मौर्य, Yes, sir. नवीद, हेलो, यस सर। यस सर। सबके समझ में यहां तक आ गया। अब हाइड्रोजन आयन तो ये चला गया, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में आ गया। अब बचा बाई कार्बोनेट आयन, है ना? इसमें ट्यूबलेट सेल्स में कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ था, किसमें? ACO3 प्लस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन आयन। इस ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में चला गया, और ACO3 बाई कार्बोनेट आयन इस तरफ जाएगा। किसमें जाएगा? एक्स्ट्रा 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 सेलुलर। सेलुलर। हाँ, गुड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट यानी ACO3 चला गया। वहां पहले से क्या प्रेजेंट है? सोडियम आयन। सोडियम। पहले से क्या प्रेजेंट है? सोडियम आयन। ये सोडियम आयन ACO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? NaHCO3। CO3। हाँ, बस लिख लो, इतना बना, आप खुद बनाओ इतना। तो आपने इसमें एक चीज देखी, पीसीटी में जितने हाइड्रोजन आयन बने उतने यूटिलाइज हो गए, यानी यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हुए। हाइड्रोजन आयन बने तो सही पीसीटी में, लेकिन वो पूरे के पूरे इस्तेमाल हो गए। और जब यूरिन में हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन नहीं होगा तो यूरिन एसिडिक कैसे होगा? तो अब इसमें दो लाइन लिख लीजिए। हाइड्रोजन आयन्स आर सेक्रेटेड इन पीसीटी एंड डीसीटी। हाइड्रोजन ions are secreted. Hydrogen ions are secreted. Hydrogen ions are secreted in PCT and DCT, but the acidification occur. Only in the DCT, because it is not excreted through the urine. Listen now. Hydrogen ions are secreted in PCT and DCT, but the acidification occurs only in the DCT because it is not excreted in the urine. किसमें? PCT में. It immediately combined with bicarbonate ion. It immediately combined with the bicarbonate ion to form carbonic acid, which break up into carbon dioxide and water.
and these carbon dioxide and water enters in the tubular cells. ये कहां पर हुआ है? इन पीसीटी। हाइड्रोजन आयन जितने बने वो सब के सब इस्तेमाल हो गए। तो इसका कोई भी रोल नहीं रहा एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन में। अब आ जाते हैं डीसीटी में। वो व्हाट्सएप पे मैंने आपको आपको एक चार्ट भेजा है इन डीसीटी, उसमें लिखा है इन डीसीटी। उसको देख के फिर आप एक अलग से बनाइए जिससे आपकी समझ में आए। फर्स्ट कॉलम में ऊपर लिखना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे पहले उसमें लिखा हुआ है। इन फर्स्ट कॉलम राइट डाउन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इन द सेकंड कॉलम राइट डाउन ट्यूबुलर सेल्स, and in the third column write down lumen of the tubule. 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरे में ट्यूबुलर सेल्स और तीसरे में ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। और ऊपर लिख लो इन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बनाया? यस सर। हाँ बना लो, आराम से बना। अब ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में आपने देखा, उसमें चार्ट में नीचे लिखा है Na2HPO4, Na2HPO4 दिखाई दिया? Na2HPO4 इसका क्या नाम है? डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम है इसका? Na2HPO4 का क्या नाम है? डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। दिखाई दिया ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में? यस सर। ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें से एक सोडियम आयन को हम हटा देते हैं। एक सोडियम आयन को हटा देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? आगे रिजल्ट क्या होगा? Na प्लस NaHPO4। पहले देखो उसमें कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड में क्या सोडियम के 2 आयन हैं, इसमें से एक सोडियम आयन हमने हटा दिया। ये सोडियम आयन को शिफ्ट कर दो एरो बना के ट्यूबुलर सेल में। ट्यूबुलर सेल में आ गया, ट्यूबुलर सेल में भेजा सोडियम आयन को। बोलो। यस सर। अब ट्यूबुलर सेल को, सोडियम आयन को ट्यूबुलर सेल में भेज दिया। अब इस सोडियम आयन को ट्यूबुलर सेल से किसमें भेज दो? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज दो। फर्स्ट कॉलम भेज दो, फर्स्ट कॉलम भेज दीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो सोडियम की कहानी कंप्लीट पूरी हो गई। सोडियम की कहानी पूरी हो गई।
तो सोडियम आयन कहाँ आपने पहुंचा दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच गया सोडियम आयन। अब इसके अलावा ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में ओरिजिनल कंपाउंड कौन सा था, Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका आपने ब्रेक डाउन किया था, इसमें से एक सोडियम आयन आपने हटा दिया, क्या बचा NaHPO4। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि एक सोडियम हट गया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ये इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब सोडियम आयन इसमें आपने सबसे पहले भेजा था ट्यूबलेट सेल में, भेजा ना। अब Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बदले में एक पॉजिटिव चार्ज हमें वापस चाहिए, न्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में आना चाहिए। न्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में एक जब पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन ऐसे गया है, तो उसके बदले में एक पॉजिटिव चार्ज मैंने 5 रुपये आपको दिए हैं, उसके बदले मैंने आपको 5 रुपये का नोट दिया है, उसके बदले में मेरे को 5 रुपये सिक्के देते, वही चीज होगी। तो सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज इधर गया, और इसके अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इस पॉजिटिव चार्ज के बदले में वापस आएगा। सर मतलब सोडियम आयन लिया था तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे आएगा। हाँ, हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, फ्रॉम ट्यूबुलर सेल से किसके अंदर आ गया, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल। हाँ, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में आया, ये हाइड्रोजन आया, और पहले ओरिजिनल कंपाउंड पे क्या था, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, उसमें से एक सोडियम आयन हट गया, तो क्या बचा था, NaHPO4 बचा था ना। यस सर। NaHPO4 बचा था। अब क्या करो, NaHPO4 में एक हाइड्रोजन आयन जोड़ दो, तो NaH2PO4। हाँ, NaHPO4 प्लस हाइड्रोजन आयन। अब क्या कंपाउंड क्या बन गया, NaH2PO4। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। वेरी गुड, आप लोगों के समझ में आ गया। अब ये किसमें आया, ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट कहाँ बना, ल्यूमन ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। हाँ, तो एक आपने देखा जो ओरिजिनल कंपाउंड था, इसमें एक हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा हो गई ना। जब एक हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुआ तो यूरिन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसलिए यूरिन एसिडिक होता है, कहाँ के सेक्रेशन से, हाइड्रोजन आयन के, इन DCT, नॉट इन PCT। क्लियर? यस सर। अब आ जाते हैं ट्यूबलेट सेल। ट्यूबलेट सेल में देखिए चार्ट में बना है नीचे, यहाँ पर भी ट्यूबलेट सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, इस CO2 ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन किया, CO2 प्लस H2O क्या बन गया, फिर वही चीज बन गई, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बना। यस सर। ट्यूबलेट सेल में CO2 प्लस H2O क्या बना, H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। इस कार्बोनिक एसिड का फिर फर्दर ब्रेक डाउन हो गया, इसमें हुआ H प्लस HCO3, हाइड्रोजन आयन किधर चला गया, ल्यूमन ऑफ द, इसके बदले में गया सोडियम आयन के बदले, सोडियम आयन के इधर आ गया, इस तरफ आ गया, इधर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना। अब बाइकार्बोनेट आयन ट्यूबलेट सेल से इसमें आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया, और वहां पहले से ही सोडियम आयन प्रेजेंट था, सोडियम आयन से रिएक्शन कर लिया, बना दियो, क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। इसको ऐसा करना,
एक दो बार ये चार्ट बनाओगे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है मेरे से नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हो, जो कभी भी पूछ सकते हो। Now write down hydrogen ion. Hydrogen ion combines with sodium hydrogen phosphate to form sodium dihydrogen phosphate which causes the acidification of the urine. Which causes the acidification of the urine. Now the next write down excretion of hydrogen ion. Excretion of hydrogen ion by the formation of ammonia. Excretion of hydrogen ion by the formation of ammonia. अब इसमें भी आप 3 वर्टिकल कॉलम बना लीजिए जैसे पहले बनाया आपने। पहले कॉलम में ऊपर क्या लिखना है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे? ट्यूबुलर सेल्स। और थर्ड कॉलम में क्या लिखोगे बेटे? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। हाँ, तो 3 वर्टिकल कॉलम बनाओ। तो 3 कॉलम आपने बना लिया। तीन वर्टिकल कॉलम जैसे बन गए, अब फिर हम स्टार्ट करते हैं ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में सोडियम आयन देखो ऊपर लिखा है। अब इसको सोडियम आयन को शिफ्ट कर दो, भेज दो ट्यूबुलर सेल के अंदर एरो बना के। ट्यूबुलर ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल से सोडियम आयन को शिफ्ट कर दो ट्यूबुलर सेल के अंदर, और ट्यूबुलर सेल के अंदर सोडियम आयन पहुंच गया। जब ट्यूबुलर सेल के अंदर सोडियम आयन आ गया, अब इसको शिफ्ट कर दो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर भेज दो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज दो। अब देखो सोडियम आयन आपने कहाँ भेजा? ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। वही देखो पुरानी कहानी है, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल से किसे भेजे? ट्यूबुलर सेल में। तो जब पॉजिटिव चार्ज इसमें चला गया ट्यूबुलर सेल्स में, तो एक पॉजिटिव चार्ज वापस आना चाहिए। तो इसके बदले में हाइड्रोजन आयन को आप भेज दीजिए ट्यूबुलर सेल से ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। अब इसके बाद अब कहानी स्टार्ट होती है। हम ट्यूबुलर सेल से शुरू करते हैं। ट्यूबुलर सेल्स में सबसे नीचे देखो, आप लिखो ग्लूटामिन। राइट डाउन ग्लूटामिन। ग्लूटामिन क्या है? एमिनो एसिड। ग्लूटामिन क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जब ब्रेक डाउन हुआ तो इससे क्या निकला? NH3।
ग्लूटामिन का जब ब्रेक डाउन हुआ इससे क्या निकला, NH3। अब इस NH3 को आप किधर भेजोगे, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। कहां भेजेंगे इसको, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। जब ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में NH3 आ गई तो वहां पर पहले से क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन H आयन। क्या प्रेजेंट है, H आयन। NH3 प्लस हाइड्रोजन आयन NH4 क्या बन गया, गुड। क्या बना, NH4 क्या बना, NH4 बन गया। अब इस NH4 ने रिएक्शन किया किसके साथ, सोडियम के साथ, तो एक साल्ट बन गया। NH4 ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया, एक साल्ट बन गया, उसका क्या नाम हो गया, एसीटो एसीटेट। एसीटो एसीटेट। और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम एसीटो एसीटेट। अमोनियम एसीटो एसीटेट। फिर समझ लो, ग्लूटामिन से निकली अमोनिया गैस। अमोनिया गैस आ गई ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में। ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन आयन पहले से प्रेजेंट है। इसने रिएक्शन किया, क्या बन गया, NH4। और NH4 के साथ एक साल्ट ने रिएक्शन किया, साल्ट का क्या नाम है, सोडियम एसीटो एसीटेट। और जब ये दोनों मिलके बने, दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बन गया, अमोनियम एसीटो एसीटेट बन गया। अब देखो इसमें एक हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा है ना, एक हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो यूरिन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, एसिडिक हो गया। अब फिर हम ट्यूबुलर सेल के अंदर आ जाते हैं। ट्यूबुलर सेल के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वहां पर फिर वही पुराना रिएक्शन करा था, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम H2CO3 H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। H2CO3 का ब्रेक डाउन कर दो तो बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस, हाँ गुड। बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ल्यूमन में ल्यूमन ऑफ द पहुंच गया। ट्यूब्यूल। और ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ चला गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। सेलुलर फ्लूइड में। वहाँ सोडियम पहले से प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ने रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, गुड। और इसी को लिख लो बेटे, यही क्या लिखना है, किडनी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, kidney increase excretion of hydrogen ion by the formation of kidney increase excretion of hydrogen ion by the formation of ammonia, in the tubular cells, ammonia is formed. In the tubular cells, ammonia is formed when the amino acid glutamine, is converted into glutamic acid। तो एमिनो एसिड ग्लूटामिन का ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना, ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया।
So when amino acid glutamine is converted into glutamic acid, GLUTAMIC, glutamic acid, in the presence of an enzyme, glutaminase, 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 ammonia is also formed, NH3. Ammonia is also formed by the deamination of some of the amino acids like glycine and alanine. Glycine, GL1-CINE, glycine, and alanine, ALANINE. Thus hydrogen ion enters in the urine. In the form of ammonium compound. Thus hydrogen ion enter in the urine in the form of ammonium compound, and the entry of hydrogen ion causes acidification of urine. तो यूरिन एसिडिक हो गया ना. अब लास्ट में 2 लाइन आपको लिखना है. Thus by the excretion of hydrogen ion, and retention of bicarbonate ion, and retention of bicarbonate ion, kidney play an important role in the maintenance of acid base balance of the body fluids. कल शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर यही है. फिर सुन लीजिए. Thus by the excretion of hydrogen ion and retention of bicarbonate ion, kidney play an important role in the maintenance of acid base balance of the body fluids. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ द pH ऑफ द ब्लड इज मेंटेन, क्या लिखोगे बताओ? By excretion of hydrogen ion and reabsorption of bicarbonate. ये पूरा लिखना है आपको. तो देखा आपने किडनी किस तरीके से, किडनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी फ्लूइड्स के पीएच को मेंटेन करने में. So this is all about the acidification of urine. अब इसके बाद थोड़ा सा बचता है रीनल सिस्टम में.
रीनल फंक्शन टेस्ट, दो तीन मिनट और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट, the function of the kidney, the function of the kidney are assessed by, the function of the kidney are assessed by various tests. The function of the kidney are assessed by, assessed, A-S-S-E-S-S-E-D, assessed by the various tests called renal function test. First is examination of urine. First is examination of urine. Second is examination of blood. And third is examination of blood and urine. सबसे पहले क्या एग्जामिन करते हैं? यूरिन। So examination of urine. यूरिन के एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं? रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। अब रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, सबसे पहले यूरिन में क्या चेक करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जनरल यूरिन में दो चीज देखते हैं, जनरल एग्जामिनेशन हो गया, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन हो गया, और तीसरा हो गया बेटा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया। तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या कलर है इसका, और सेडिमेंट हैं कि नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कलर पे। कलर कहता है अगर ज्यादा डीप येलो है तो ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है, जॉन्डिस की तरफ इंडिकेट करता है। थोड़ा रेडिश बना रहा है तो वो शो हो सकता है या तो किसी मेडिसिन की वजह से हल्का रेड हुआ हो। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे रिफेम्पिसिन होती है, ATT एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन होती है, उससे यूरिन कलर रेड हो जाता है। और या फिर यूरिन में क्या है, ब्लड आ रहा है। दो चीजें हो सकती हैं। मेन चीज होती है कलर, बहुत मायने रखता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। तीसरा बेटे इसमें देखते हैं सेडिमेंट्स। यूरिन को टेस्ट ट्यूब में अगर रख दें तो ऐसा तो नहीं कि नीचे कुछ सेडिमेंट्स कलेक्ट हो गए हों। और इसके बाद आ जाता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। फिर इसका केमिकल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में कई सारे टेस्ट हैं। पहला फर्स्ट टेस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है प्रोटीन एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं इसमें यूरिन में। कैसे किस तरीके से एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में 3/4 टेस्ट ट्यूब को किससे भर लेते हैं? यूरिन से भर लेते हैं और इसको क्या करेंगे? गर्म करते हैं, है ना। और जब ये बॉइल्ड होने लगता है तो क्या होगा इसमें? अगर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट गर्म करने से इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें आया, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो फास्फेट है या एल्ब्यूमिन।
कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फास्फेट है या एल्ब्यूमिन है, इसमें क्या डाल देंगे? थोड़ा सा 4-6 ड्रॉप एसिटिक एसिड की डाल देते हैं। अगर फॉस्फेट होगा तो एसिटिक एसिड में वो डिसॉल्व हो जाता है, और एल्ब्यूमिन होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो एल्ब्यूमिन देख लेते हैं, शुगर देखते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन से, तीसरा इसमें कीटोन बॉडीज देखते हैं, और ब्लड चेक करते हैं। तो कई सारे तरीके के केमिकल टेस्ट होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आ जाता है, यूरिन की स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, 40x या 100x करेंस लगा के। इसमें जैसे यूरिन मान लो रेड दिखाई दे रहा था, 100x करेंस लगाने से अगर रेड ब्लड सेल उसमें दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या शो कर रहा है? इसमें ब्लड है। और रेड ब्लड सेल नहीं है तो हीमोचूरिया नहीं है, यूरिन रेड हुआ वो रेड ब्लड सेल की वजह से, ब्लड की वजह से नहीं है। हो सकता है वो किसी कोई मेडिसिन ऐसी हो उसकी वजह से रेड हो गई। आज बेटे यही खत्म करते हैं। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटे, Thank you, sir. वेलकम बेटे। Thank you, sir.